انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر عظم، آپ کے اوپر جادو ہونا، آپ کو مشکل میں چلے جانا، آپ کی آتی ہوئی دولت رک جانا یا آپ کے بزنس کی گروتھ رک جانا، اس کے اوپر ساری ویڈیو ہے۔ اچھا، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ لیں، جس دن آپ پیدا ہوئے، کون سا مہینہ آپ کے سامنے آیا اور کون سا سال آ گیا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے۔ جیسے کہ ابھی 2026 چل رہا ہے، 2026 کا ٹوٹل کریں 2 جمع 2 جمع 6، 10 کا نمبر 1 آ گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 سے رول ہو رہا ہے سورج۔ 2026 آپ کو کیا دینے جا رہا ہے ڈیٹ آف برتھ، کن ڈیٹ آف برتھ کو پیسہ، کیش، دولت، شہرت، عزت ملنے والی ہے، اور کون سے نمبر اس سال پریشان ہونے والے ہیں۔ وہ ہر چیز ڈیٹ آف برتھ کے اندر، آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہی آپ کو ثابت کرے گی کہ آپ کیا ہیں، کس جگہ پہ نقصان کریں گے، کس جگہ پہ فائدہ ہوگا، اس میں اعظم کون سا ہوگا، قرآنی آیت کون سی آپ پڑھیں جو آپ کے نمبر مسنگ ہے، جو آپ کی کیش فلو کو آگے لے کے چلا جائے، جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی شادی لیٹ ہو رہی ہے، رشتے آ کے واپس چلے جاتے ہیں، تو وہ کون سا نمبر آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کے چلتے کاروبار کو کون سی نظر اور کون سی حسد اور منافقت کی وجہ سے جو آپ کا بزنس ہے وہ گروتھ سے رک گیا، کہیں آپ کے اوپر کوئی جادو کے اثرات تو نہیں ہوئے۔ ہر چیز آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ سے دیکھ سکیں گے، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو، نہ کسی عالم، نہ ادھر کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ کو بول کے بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ اچھا، ڈیٹ آف برتھ کو لے کے شروع ہو جائے، پہلے آپ اپنا ڈیٹ لکھیں، آپ کس دن پیدا ہوئے وہ اپنے سامنے لکھ لیں، اس دن کون سا مہینہ تھا، اس وقت کون سا سال چل رہا تھا، تینوں چیزیں لکھ لینی ہے۔ تینوں چیزیں لکھیں گے جب، اگر فرسٹ پہ جب آپ پیدا ہوئے، مثال کے طور پر نمبر آ جاتا ہے 2 تاریخ آ گئی، 11 آ گئی، 20 آ گئی، 29 آ گئی، 2 تو آ گیا سنگل ڈیجٹ، آپ کو پتا چل گیا 2 تاریخ ہے۔ ابھی 11 تاریخ ہے، جب 11 آئے گی تو ایک اور ایک 2 وہ بھی سنگل ہی کرنا ہے، آگے 20 آگے سنگل ہے، آگے 9 اور 2 29 آگے، 9 10 11 آ گیا تو وہ بھی سنگل ڈیجٹ آپ نے نکال لینا ہے، اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ فرسٹ سے ڈبل ڈیجٹ پہ آئے تو۔ کوئی بھی ہو سکتی ہے، 1 ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہے، 3 ہو سکتی ہے، اسی طرح آگے اگر یہ ڈبل ڈیجٹ ہو جائے گا تو اس کو سنگل ڈیجٹ پہ کریں گے تو آپ کی ڈیٹ آف برتھ کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اچھا، آج نمبر 4 کو لے کے ایک ڈیٹ آف برتھ 4 سے رول جو ہو رہی ہے اس کا میسج آیا ہوا تھا، اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جناب ایک میسج کرتے ہیں، میسج کے اندر ان کی ڈیٹ آف برتھ آتی ہے ہمیں، تو اس پہ ہی آج ایک بات ہونے جا رہی ہے۔ ڈیٹ آف برتھ 4 جو ہے ان کی 22 تاریخ ہے، 22 تاریخ دس رہے ہیں، میں اسی حساب سے 4 کر رہا ہوں، 2 2 4۔ اچھا، 4 سے جو رول ہو رہے ہیں یہ کس پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، کیا چیز ان کے پاس ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، اس کو پلانٹ جو رول کر رہا ہے وہ لال کتاب کے حساب سے، جو لال کتاب ایک بہت مشہور لال کتاب ہے، اکثر کہیں اپنی زندگی کے اندر اس کے پاس سٹرگل رہتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کر کے یہ اوپر آتا ہے، جب یہ اوپر آ جاتا ہے تو پھر یہ اپنی جو کیش ہے یا بزنس ہے اس کو کس طریقے سے لے کے آگے چلتا ہے، اس کی زندگی کے اندر کون کون سی مشکلات کا یہ سامنا کرتا ہے، یہ رشتہ نبھانے میں میرڈ لائف میں کیسا رہتا ہے، اپنے فیملی کے اندر کیسا ہے، یا پارٹنرشپ میں یہ نمبر کیسا رہنے والا ہے، اس کا لک کتنا تیز ہے، کیا یہ قسمت کا نمبر مانا جاتا ہے، یہ سب چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 4 جو ہے اصل میں اس کو ڈسپلن کا نمبر کہا جاتا ہے، ہر کام بڑے ڈسپلن سے کرے گا، کبھی بھی دیکھ لیں اس کی عادت کوئی نہ کوئی جو بچپن سے ہے وہ اس کے ساتھ چلتی آئے گی، جیسے کہ ہینڈ واش کرے گا تو بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوگا، کوئی بھی چیز کو رف یا ادھورے طریقے سے نہیں کر رہا ہوگا، ڈسپلن اس طریقے سے ہوگا، اپنی چیز اتنی جلدی یہ کسی کو دیتا نہیں ہے، کسی کی استعمال چیز پہ اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوتا، بہت خاموش نمبر ہوتا ہے، محنت کرنا جانتا ہوتا ہے۔ تو کیش کے متعلق اس کی بات اس طرح ہے، کیش اس کے پاس آنا ہوتا ہے، آتا بھی ہے، لیکن یہ کیش کے متعلق میں جا کے اس کے پاس جو کیش رول ہوتا ہے وہ جا کے 20-25 سال کے بعد رول ہونا شروع ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کیش کو یہ اپنی طرف لے آئے،
हमेशा अपने नाम का जो टोटल होता है वो कोशिश किया करें कि नंबर 4 से रूल ना हो रहा हो, वो स्ट्रगल बहुत कराता है। नंबर 4 जो है ना जिंदगी के अंदर स्ट्रगल बहुत कराता है, स्ट्रगल के बाद जाके ये आपको आपकी मेहनत का फल देता है। इसी तरह को लॉटरी या प्राइज अमाउंट या ये अगर कोई जुए की लत है तो इतनी जल्दी इसके पास पैसा इन चीजों से रूल होके आने वाला नहीं होता। इसको टाइम चाहिए होता है। टाइम भी ये है कि ये मेहनत करना जानता है, बहुत हार्ड वर्क होता है ये नंबर। मेहनत करके ही ये डेट ऑफ बर्थ वाला जो है ना वो चमकता है। जब ये चमकता है फिर दुनिया इसको देखती है। वो कहते हैं ना मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे आया हूं, तो ये सेम नंबर वही है। जॉब में देख ले, बिजनेस में देख ले, इस जैसी मेहनत नहीं को कर सकता। अगर अपनी जॉब के अंदर है तो पूरा मुखलस तरीके से उस जॉब को निभा रहा होगा। कहीं भी शॉर्टकट लेने वाला ये नंबर नहीं होता। कुछ आदमी होते हैं जो शॉर्टकट सोच रहे होते हैं, जैसे नंबर 1 वाले जो होते हैं वो अक्सर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 होता है टोटल पे, वो बहुत शॉर्टकट सोचता है कि शॉर्टकट से पैसा बना। ये नंबर मेहनत करके आने वाला है। नंबर 4 जो है मेहनत के बलबूते पे आता है, मेहनत के बलबूते पे आके अपनी चमक दिखाता है। अच्छा, जब ये नीचे से ऊपर आता है तो बहुत पावरफुल नंबर हो जाता है, तो ये आगे चल के अपने आप का नुकसान किस तरीके से करता है। सबसे पहले जो इसको कंट्रोल करने वाला होता है वो इसका हल्का अभाव होता है, जो सबसे पहले इससे हसद और नजर लगाने वाला होगा। सबसे ज्यादा जब ये 20-25 साल के बाद जाके अपना सितारा चमकाता है, चाहे जॉब से चमकाए चाहे बिजनेस करके चमकाए, चमकता जरूर है जिंदगी में एक बार। किस जगह पे जाके ये गलती करता है जिससे इसकी हर चीज बैक पे चले जाती है। वो कौन से ऐसे काम करे जिससे इसके पास कैश और ग्रोथ बढ़ती जाए, वो भी हर चीज मैं आपको इसकी बताता जाता हूं। इसके अंदर इसका इसमें आजम बहुत अहमियत रखता है नंबर 4 वाले की। नंबर 4 वाला अपना इसमें आजम अगर अपने साथ ऑन रखे, अपने नंबर को वाइब्रेशन दे। नंबर को वाइब्रेशन देना भी बहुत काम होता है। आपकी रूह का भी एक नंबर आता है, फिर आपका एक एंजल नंबर आता है। ये नंबर जब एक साथ आप इनकी बातें समझ जाएंगे तो आप हर कदम पे अपना जो अगला कदम होगा उसको सोच समझ के उसको उस तरीके से लेके चलेंगे कि आप नुकसान की तरफ नहीं जाएंगे, अगर अल्लाह ना चाहे। बात सारी मेरे अल्लाह के हाथ में। इसमें आजम जो होता है वो अल्लाह के नामों में से एक नाम इंसान की रूह के साथ अटैच होता है, तो वो इसमें आजम कहलाता है। वही इसमें आजम होता है जो वली पीर फकीर पढ़ के अपनी मंजिल को पहुंचते हैं। तो हर रूह का जो वाइब्रेट है ना वो इसमें आजम से होती है। इसमें आजम बहुत जरूरी है। रूहानियत इंसान के अंदर जब तक परवान नहीं चढ़ती, इंसान दुनिया में खसारे में ही होता है। इंसान दुनिया में फायदे में नहीं है, खसारे में है। फायदे में वही है जिसने इबादत की, परहेजगारी की, अल्लाह की बंदगी की, वो फायदे में है। अगर ये चीजें नहीं है तो दौलत शोहरत इज्जत सब खाक में मिल जानी है, मिट्टी में चले जाएंगे, हर चीज खाक हो जाएगी। आपका मेरा वजूद मिट्टी है, खाक है, इसकी कोई अहमियत नहीं रहने वाली। जब तक जो रूह हमारे अंदर है अगर वो ही तड़प रही है, रूह को तो पता है मैं दुनिया में आई तो किस मकसद के लिए आई। आगे आपका और मेरा वजूद जो है ये इंसानी ख्वाहिशात पैदा कर लेता है, अपने लिए सहूलतें ढूंढ लेता है। ये सारी चीजें जो है ये रूह और जिस्म के अंदर चल रही होती है, एक ट्रैवल कर रही होती है। उसी के साथ आप जिस दिन पैदा होते हैं, जब आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, तो जब रूह इस दुनिया में सांस लेती है ना तो उसके साथ जो उसका नंबर होता है वो उसको वाइब्रेट जरूर करता है। वाइब्रेशन होनी होनी है। जब तक इसको आप थोड़ी सी अर्थ नहीं देंगे, इसकी खुराक नहीं मिलेगी रूह को, रूह परवान कैसे चढ़ेगी। रूह को परवान पे लेके आने के लिए आपको अल्लाह के नाम और इबादत करना जरूरी हो जाती है। वो रूह की खुराक है। किसी से अच्छा बर्ताव भी है, वो भी आपकी नेकी है। किसी भूखे को खाना खिला देना वो भी आपकी नेकी में आता है। किसी से अच्छा सलूक वो भी आपकी नेकी है। मेहमान की मेहमान नवाजी करना वो भी आपकी नेकी है। अपने बहन भाइयों से अच्छा सलूक करना वो भी नेकी में आता है। सबसे बड़ी नेकी वही होती है।
अगर जो बात कर लेते हैं हर रहा था डेट ऑफ बर्थ की। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में ना आप अपनी डेट को जब लेके शुरू होंगे, नंबर 4 से रूल होने वाले जो होंगे ना, इनसे सबसे करीबी जो पहली हसद और नजर नजर रखने वाले होते हैं वो इसके अपने होते हैं, वो बहन भाई हो, रिश्ते में हो, चाहे वो दोस्त हो। नंबर 4 वालों को मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब देखें कि ये अपनी ग्रोथ और बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा दुनिया से छुपा के करें। इनकी मेहनत, इनके स्ट्रगल से जब ये ऊपर आते हैं तो दुनिया जल जाती है। जल इस तरीके से जाते हैं, नफरत इस तरीके से पैदा होने लगती है। जब देखेंगे आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं तो आपका एक टाइम आएगा, आपका एक सितारा चमकेगा, जो डेट ऑफ आपकी पैदाइश के साथ जो डेट चल रही है उस हिसाब से आपकी किस्मत अल्लाह पाक जब चमका देता है तो आप जिस फैक्ट्री में जॉब कर रहे होते हैं अल्लाह उसका मालिक बना देता है आपको, या आप अपना अलग बिजनेस को कर लेते हैं। तो जो आपके हल्का बाब आपके साथ वर्कर होते हैं, आपके हमसाए कह ले होते हैं, वो आपसे जलना शुरू हो जाते हैं कि यार इसने रातों रात कौन सा तीर मार लिया था। वो उसके पीछे नहीं देख रहे कि इसने अपनी मेहनत कितनी की, कितनी देर इसके ऊपर स्ट्रगल किया। वो सब कुछ लोग भूल जाते हैं, वो बस हसद और नजर आपके ऊपर टका के बैठ जाते हैं, जिससे ये नंबर 4 वाला जो है वो बहुत जल्दी नीचे गिरता है। जब तक ये अपने अंदर इसमें आजम ऑन नहीं करेगा, इसको हसद और नजर लगनी ही लगनी है। मैं अक्सर इसको कहता हूं कि किसी के साथ बुरा मत किया करो। ये करते भी बहुत कम है किसी के साथ, अगर जिंदगी में हो जाए तो इन्हें अपनी जिंदगी के अंदर ही उसका बदला देना आ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रगल का नंबर है, मेहनत करके आता है ना, तो ये किसी का इतनी जल्दी हक खा जाता है, ना ये कभी सोच में लेके आता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, कोई प्राइज बॉन्ड या लॉटरी या इस तरह के कभी भी ये चांस में झांसे में आता ही नहीं है। ये अपनी मेहनत के ही बलबूते पे रहता है। तो इसको चाहिए कि ये कोशिश किया करे कि अपना विर्द जो है ना वो और रखा करे। अल्लाह के नामों में से एक नाम है जिसका ये विर्द किया करे, वो है या वहाबू या वदूदू। इन नामों का विर्द किया करे। ये कैश को इस तरह लेके इसकी तरफ आएगा कि आपकी सोच हो सकती है, बहुत जल्दी कैश को अपनी तरफ लेके आएगा। नंबर 4 वालों को दूसरी तरफ मैं ये बोलता हूं कि ये अल्कोहल को मत छुए। अल्कोहल मुसलमान है हम पे वैसे भी हराम है, अगर कोई करता भी है ना, वो नंबर 4 वालों को ये है जब ये शराब के नशे में जाना शुरू होंगे तो इनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। इनकी सजा, इनकी पकड़ बहुत सख्त है नंबर 4 वालों के लिए, जो 4 से रूल हो रहे हैं। अच्छा, ये क्या ऐसा काम करे कि इनके रुके हुए काम, इनका बिजनेस जो है वो ग्रोथ करना शुरू हो जाए। वो इसी तरीके से इनके ऊपर ग्रोथ करेगा कि अगर ये अपना विर्द जो है वो ऑन रखें। कोशिश किया करें कि ये जो है वो एक नादे अली है, नादे अली पढ़ा करें, शाम के वक्त नादे अली पढ़ा करें। बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं तो नादे अली पढ़ा करें, कभी भी इनको हसद नजर, यहां तक के शैतान भी इनके पास नहीं आएगा अगर नादे अली पढ़ लिया करेंगे अपने पास। नंबर 4 जिसकी डेट ऑफ बर्थ से रूल हो रहा है, नादे अली को पढ़ा करे। विर्द मैंने बता दिया वो कौन सा करना है, रात को नादे अली एक बार जरूर पढ़ा करे। जब ये अपने बिजनेस की जगह पे जाएं, जिस जगह जाके ये बैठते हैं या जिस जगह इनका दफ्तर है, ऑफिस है, जॉब करते हैं, तो उसके अंदर तरक्की मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि दुकान है, कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, जिस जगह पे जाके ये सुबह बैठते हैं सबसे पहले कोशिश किया करे जाते सार तलावत किया करे, अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा करे, कुरान की कोई भी सूरत, कोई 20 पारे से कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा करें। अगर नहीं कुरान उधर मौजूद है तो बावजू होके विर्द कर लिया करें अपना। अगर बिल्कुल ही आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर भी आप 2-3 लफ्ज हैं, या वहाब या वदूद, इसका विर्द कर लिया करें। अगर पढ़े हैं, कुरान पढ़े हैं, तो कोशिश किया करें 1-2 सूरत छोटी सी कोई भी उस जगह पर बैठ के पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर अपने काम को स्टार्ट किया करें। अच्छा, इनकी रेमेडी एक तो ये होगी, जिस जगह पे अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर जहां ये बैठे हुए हैं, जैसे मैं बैठा हूँ चेयर पे बैठा हूँ, उसके ऊपर कोशिश किया करे कि या वहाबू या वदूदू का एक सिंदरी लगा ले।
अगर दुकान है तो जिस जगह पे बैठा है उसके सामने या अपने ऊपर एक सिंदरी जरूर रखा करे अपने पास इस नाम की। वो पढ़ने से भी बरकत मिलेगी, उसको देखने से भी मिलेगी, दोनों चीजों से रहमतें मिलेंगी इसको। असर की नमाज पढ़ा करे, उसके बाद ये विर्द 313 मरतबा दोहराया करे। असर की नमाज के फौरन बाद उसी जगह मस्जिद में बैठ के पढ़ रहा है, घर में पढ़ रहा है, कहीं भी नमाज अदा की है तो ये विर्द जरूर किया करे, या वहाबू या वदूदू का। ये अल्लाह की रहमतें इसके पास आना शुरू हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे कोशिश किया करे जब ये सुबह घर से निकले, अगर शादीशुदा है, घर से निकले तो अपनी वाइफ को 100 कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितने दे सके, ठीक है, 100 का अदद जरूर दे के जाया करे। हार्ड कैश सुबह, चाहे आप जितने मर्जी पैसे, आपकी वालदा आपके पास मौजूद है, उसको 100 रुपया आपने वो दे के जाना ही जाना। दूसरी कोशिश ये करनी है जब आप घर से निकल रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं या बिजनेस पे जा रहे हैं, आप अपने कारोबारी मामलात की तरफ जा रहे हैं, तो रात को उनको पैसे दे दिया करें जो अपने साथ लेके जाने। सुबह जब निकले अपनी वालदा से, अगर शादीशुदा है तो अपनी वाइफ से, जिनकी वालदा अभी जिंदा है कोशिश वो वही किया करे, सबसे पहले वालदा है, उसके बाद आपकी वाइफ है। वाइफ के हकूक अपनी जगह है, माँ के हकूक अपनी जगह। तो जो माँ से आप दुआएं लेके निकलते हैं तो दुनिया में किसी जगह हार नहीं सकते आप। नंबर 4 वालों को ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नंबर जो है ना, नंबर 4, ये थोड़ा सा इनसे दूरी रखता है, हर चीज छुपा के खामोश डिसिप्लिन के अंदर चलने वाला ये नंबर होता है। बड़ी जल्दी ये नफरत की तरफ चला जाता है। तो इसलिए इसको, जो आपके घर आपकी लेडीज हैं, माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, वो आपके कैश का नंबर है। वो आपकी बहुत बड़ी एक रेमेडी बता रहा हूं कि नंबर 4 वालों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि पैसे ब्लॉकेज में है, आ नहीं रहे, कारोबार में नुकसान में जा रहा हो, और दूसरी मुश्किलात का सामने हो रहा है, आपका ब्रांड नीचे गिर रहा है, या कोई भी मुश्किल आप समझ रहे हैं मेरे ऊपर तारी हो रही है इस वक्त। मैं कुछ आदमी को कहने में सुनना आता है कि मेरा अभी टाइम खराब चल रहा है। जब ऐसी चीजें आपको समझ आने लगे ना कि मेरे साथ ये होने वाला है या हो रहा है, उसी दिन से या अपनी रूटीन को इस सर्कल में रखें कि आपने जब निकलना है तो मां से पैसे जो उनसे लेके आए, ठीक है। जब वो पैसे आपको दें उनमें से उनको एक 100 का नोट दे दिया करें कि ये बोले ये आपका है, आप इसको खर्च करें। वो अलग से दे के आना है। माँ नहीं है, बहन है, बहन नहीं है, आप मैरिड लाइफ में है, आपकी बीवी है उससे, आपकी बेटी है उससे, इनसे जरूर आपने मिल के निकलना है अपने बिजनेस की तरफ। ये बहुत जरूरी पॉइंट है आपके लिए। ये इतना है कि आपकी हर चीज जो आपको मुश्किल नजर आ रही है चुटकियों में आसान होना शुरू होगी। आप 40 दिन यही रूटीन रख के देख लें, ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा, कोई इसके अंदर आपको तवीज धागे या को पेचीदा सवाल नहीं बता रहा जी आप उस जगह पे बकरा देने जाएंगे, इस बाबा के पास जाएंगे, ये तवीज कराएंगे, वो कुछ नहीं करना। बस इस रेमेडी को अपनाना है, सुबह घर से निकलना है, माँ, बहन, बेटी, बीवी, इनसे मिलके निकलना है, इनको कुछ ना कुछ दे के आना। जब शाम को घर आए आप, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज आपने लेके आनी है, ये मिसिंग नहीं करना आपने। अगर ये चीज अपना रहे हैं इसको मिसिंग नहीं करना। 40 दिन आपने करके बताना मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अगर आप ग्रोथ पे इस जगह पे हैं, अगर इस जगह पे लेवल उसी दिन से जाना शुरू ना हो, आपकी ग्रोथ इस तरह तेजी पकड़ेगी, आपका बिजनेस इस तरह तेज होना शुरू होगा कि आपकी सोच में नहीं होगा। आपको उस जगह से पैसे आएंगे जिस जगह आप तवक्को नहीं कर सकते, ठीक है। देने वाला अल्लाह की जात है, कोई चीज को नंबर दे नहीं सकता, ये एक रेमेडी है। देना उसी की जात ने है, अल्लाह नहीं देना है, अल्लाह की तरफ से ही हर चीज इंसान के पास आनी होती है। आपने जो चीजें मैंने बताई हैं उनको करके देखना। फिर एक चीज और आपने कर लेनी है कि आपने अपना सदका एक दिन मुकर्रर कर लेना। अच्छा, सदका किस चीज का देना नंबर 4 वालों ने?
सुरख दाल देनी है आपने, सुरख दाल, मसूर की दाल उसको बोलते हैं। सुरख दाल जो है वो परिंदों को डाल दें, साथ चावल रख दें, परिंदों को देना शुरू कर दें। 20 की, 50 की, 100 की, जितनी आपकी हस्बे तफीक समझे, गुजरते कहीं भी जहां परिंदे देखे उनको दे दें। ये आपको जितने आप अगर 10 लगा के जा रहे हैं तो 11 गुना की उम्मीद कर लेना। अल्लाह की वो मखलूक है, उसको भी खाने में देना चाहिए। इन चीजों को आप अपना के देखें तो इंशाल्लाह आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी हर चीज मिलेगी।